one of the important thing which Jesus tried to teach us is to know God as our Father. सबसे मुख्य बात जो यीशु मसीह ने हमें सिखाने की कोशिश की है वो ये कि हमें परमेश्वर को एक पिता के रूप में दिखाने की उसने कोशिश की है। That is also one important, we can say, glory of the new covenant. और ये एक नई वाचा की बहुत ही महत्वपूर्ण एक महिमा है। It is good to reflect on that, the need to know God as our Father. इस बात पर सोचना बहुत अच्छी बात होगी कि हम परमेश्वर को एक पिता के रूप में जानने पर विचार करें। The more we understand and know God as our Father, many of our problems will disappear. जितना अधिक हम परमेश्वर को एक पिता के रूप में जानने की कोशिश करेंगे उतने ज्यादा हमारी समस्या और दूर होती जाएगी। You know, when Jesus taught disciples to pray, हम जानते यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। he taught them to address God as Father in heaven. और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना इस प्रकार करते सिखाया कि हम पिता को स्वर्गीय पिता के रूप में हम कहे। So that is not just a coincidence, just accidentally happened. और ये कोई Yeah. अकस्मात नहीं है इस तरह से कहना। Jesus is so keen that his disciples know God as our Father. यीशु मसीह बहुत ही इच्छा रखता है कि उसके शिष्य परमेश्वर को पिता के रूप में जाने। So it is not a matter of just using a word, nothing wrong in addressing God as God, और you know. केवल शब्द के रूप में परमेश्वर को पिता के रूप में कहना नहीं, कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं है। Yeah, it is a matter of knowing God in our heart. He is my Father, लेकिन actually. इससे फर्क पड़ता है हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर को मेरे भीतर हृदय में एक पिता के रूप में जानना। So that will bring, among many other things, will bring lot of security in our lives. और ये हमारे जीवन में और चीजों के साथ हमारे जीवन में एक सुरक्षा को लेकर आएगा। For example, Jesus told in Matthew chapter 6, he told, Father knows. और यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय के अंदर के पिता जानता है। I remember a time when those phrases in between that, I think in Matthew chapter 6:32, that came so powerfully to me. और मत्ती 6:32 इन वचनों के कथन के बीच में ये जो वाक्य जो है बहुत ही सामर्थ्य रूप से मेरे पास आया, मैं याद करता हूँ उसे। During a period when I was going through a difficult time, that when I, in my part of the daily reading, when I read, that verses came to me, Father knows. और जब मेरे जीवन के अंदर कठिन समय से मैं गुजर रहा था और मेरे जीवन के अंदर जब मैं उस वचन के भाग को पढ़ रहा था, उस वाक्य खासकर कि पिता जानता है, ये शब्द मेरे लिए बहुत ही चुनौती भरा था। So whatever may be the intensity of problems that we are passing through, जितनी भी हमारे जीवन में समस्याओं की तीव्रता हो, कितने ही बड़े मात्रा में वो हो, even when people around us are not understanding us, और हो सकता है हमारे आसपास के लोग उन समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हो, when we know personally, my Father knows. लेकिन हम व्यक्तिगत रूप में जब इस बात को जानते कि मेरा पिता जानता है, You can imagine how it will take out all the stress from our lives. और आप कल्पना करके देखिए कि हमारे जीवन में सारे तनाव को कैसे वो सब दूर कर देगा। And not only that, in one place in 1 Peter chapter 4, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय, yeah. Now, 1 Peter chapter 3, verse 12. पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 12। There it is stated that in between, it speaks the eyes of the Lord are towards the righteous. प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। Along that it is written, his ears are attentive to their prayers. उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। So do we understand when we pray, do we know that God's ears are attentive to my prayer? क्या हम जानते कि जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर के कान मेरी प्रार्थना और विनती के प्रति ध्यान लगाए रहते हैं। It's like a little child speaking something that parents or father will be so eager, interested to listen what the child is speaking. और जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता से बात करने की कोशिश कर रहा है और पिता जो है बहुत ही इच्छा को रखता है बच्चा क्या कह रहा है उसे सुनने के लिए। So in that manner, we should always remember when we pray, we should remember when we are praying, the Lord is, His ears are attentive to my prayer. इसी प्रकार इसे याद रखना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना के प्रति बहुत ही ज्यादा
उस अटेंशन को या उस ध्यान को लगाए रहता है। Lord is interested in our lives as His children, and He is also interested to listen to our prayers. हम उसके बच्चे, उसके नाते परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसके प्रति वो ध्यान को लगाता है। It's important to know because I have seen even Christians pray as we are forcing God to listen to our prayer and make Him to answer. क्योंकि मैंने देखा है कई बार मसीह लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं जैसे परमेश्वर के ऊपर दबाव को डालते हैं प्रार्थना हमारी सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए। They pray as if the Lord is not interested to listen our prayer. He is not interested to answer us. और इस प्रकार वे प्रार्थना करते जैसे परमेश्वर को सुनने में कोई रुचि नहीं, ना हमारी प्रार्थना के उत्तर देने में कोई रुचि हो। इस प्रकार वे प्रार्थना करते That हैं। is not how we should pray. इस प्रकार हमें प्रार्थना नहीं करनी If चाहिए। you are praying like that, that means we don't know God. आप इस प्रकार यदि प्रार्थना करते हैं तो हमने परमेश्वर को नहीं जाना है। So God has intended our life to be, we consciously, willingly, we learn to trust God. और परमेश्वर ने हमारे जीवन में यही चाहा है कि हम इच्छा के साथ, जानकारी के साथ परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें। Just like little children, so much depend on parents on everything. और जैसे छोटे बच्चे बहुत सारी हर चीज के ऊपर माता पिता के ऊपर निर्भर होते हैं And parents take responsibility for them. और माता पिता उन सारे संबंध में बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हैं। So that is how we learn to trust God. और इसी प्रकार हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं। Jesus used many examples. For example, Jesus taught about the need to abide in Him, just like a branch need to abide in the tree. और यीशु ने दृष्टांत का उपयोग किया जैसे एक डाली को पेड़ में बने रहने की आवश्यकता होती है उस प्रकार। So our life should reflect like a helpless dependence upon God. और उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक असहाय निर्भरता परमेश्वर पर बनी रहे होना चाहिए। So when we know that, we will also learn to pray. और जब हम इस बात को जानेंगे तो इस प्रकार प्रार्थना भी करना सीखेंगे। When we think that I am clever, I am inadequate, I can achieve certain things, we will not depend on God. और जब हमें लगता है हम बहुत ही चतुर है, पर्याप्त है, बहुत सारी चीजें अपने आप से करते हैं, तब हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहेंगे। But we really recognize what we really are, how much we need God, we will learn to naturally trust Him in everything. और जब हम अपने आप को जान जाएंगे, हम परमेश्वर की जरूरत को जान पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हम परमेश्वर पर निर्भर होना सीख जाएंगे। When a blind person gets up every morning, और एक जब अंधा व्यक्ति जब हर सुबह को उठता है, what do you think? What is the first thing he will try to reach out? और आप क्या सोचते हैं कि सबसे पहली चीज सुबह उठकर एक अंधा व्यक्ति क्या खोजेगा? He is interested to look, where is my mobile? Is it that what is interested to find out? और क्या उसकी ये रुचि होगी कि मेरा मोबाइल कहाँ पर है? No. नहीं। He is interested to find out stick. और उसकी जो छड़ी, जो लकड़ी जो होती है चलने की, उसको वो खोजेगा। His life is so much dependent on that blind man's stick. और उसका जीवन वो छड़ी के ऊपर जो अंधों की होती है उसके ऊपर इतना अधिक निर्भर होता है। He need to use that to feel, and that is how we walk. और क्योंकि उस छड़ी का इस्तेमाल करता है ताकि वो रास्ते को वो अपने आप में फील कर सके और उस प्रकार वो चल पाता Even है। to go to toilet, he needs that. Without a stick, he can't leave. और यहाँ तक शौचालय जाने के लिए भी उस छड़ी का उपयोग उसको करना पड़ता है, उसके बिना नहीं कर सकता So है। that is a picture how God wants us to learn to trust in Him in everything. और ऐसा एक चित्र है जिसके द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं हम हर चीज के ऊपर उस पर इस प्रकार निर्भर होना सीखे। Our adequacy should not be in ourselves. और हमारी पर्याप्तता हमारे अंदर, हमारे ऊपर ही नहीं निर्भर होनी चाहिए, Our adequacy should be in God. लेकिन हमारी पर्याप्तता परमेश्वर पर ही होनी चाहिए। And when we know that I am weak, but my Father is strong. जब हम जानते कि मैं कमजोर हूं पर मेरा पिता बलवान है, Many things are not in my control, but everything is in His control. बहुत सारी चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है पर सारी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में है, Then our prayers also will be very meaningful. और तब हमारी प्रार्थनाएं भी बहुत अर्थ भरी हो जाएगी। So it's good to learn that principle every day when we start the day. और जब हम दिन की शुरुआत करते सिद्धांत को सीखना बहुत जरूरी है। You can examine also what are the things we first when you get up we seek. और हम अपने आप को जांच सकते जब हम सुबह को उठते हैं कौन सी चीजें हैं जिसको हम खोजते हैं सबसे पहले। It should not be our mobile phone. और ये हमारा मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए सबसे Our पहले। interest should not be to what are the latest WhatsApp messages that are come.
और हमारा रुचि ये नहीं होनी चाहिए कि किसने किसे मुझे रात भर में व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। We have to free our lives from such addictions. इन सारे ऐसी व्यसनों से हमें अपने आप को आजाद करना है। It's a wonderful thing. We learn to seek God first in the morning. बहुत ही अद्भुत बात यह है कि हम सबसे पहले सुबह परमेश्वर को खोजना सीखे। It should not happen as ritual. It should happen naturally. और एक रीति रिवाज के रूप में नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से अपने आप ये होना It's चाहिए। a wonderful thing if every day we can begin with seeking the Lord. बहुत ही अद्भुत बात होगी यदि हम प्रति भोर को, प्रति सुबह परमेश्वर को खोजते हुए शुरुआत करें। We read about a Jesus habit that is in Mark chapter 135. और मरकुस उसका 1:35 के अंदर यीशु मसीह की आदत को हम देखते हैं। We read there, in the early morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went away to a secluded place and was praying there. भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। Yeah, so that was Jesus' habit. और ये यीशु मसीह की आदत थी। He recognized, most important for me is to seek the Lord first in the morning. उसने इस बात को जान लिया कि सबसे पहले मेरी जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर को खोजना। So let that habit be in our lives also. और ये आदत हमारे जीवन में भी पाई जाए। It is good to have good discipline in our life और ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी अनुशासन हमारे जीवन के अंदर होना। for godliness, एक बात to build godliness, and it's good to have some good disciplines. और एक भक्तिमय जीवन को बनाने के लिए कुछ अच्छी आदतें या अनुशासन हमारे जीवन में होना अच्छी बात है। I heard about very much. I was encouraged when I read about heard about how George Muller depended upon God. और मैं इस बात को जब मैं पढ़ा कि कैसे जॉर्ज मूलर जो है उनके संबंध में जब पढ़ा कैसे परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, उससे मैंने प्रोत्साहन पाया। Some of us know many stories, very encouraging stories, how without nothing but he learned to trust God. और हम में से सभी उसकी बहुत सारी कहानियों को जानते हैं कि जब कुछ भी नहीं था वैसे समय में जॉर्ज मूलर परमेश्वर पर भरोसा रखकर प्रार्थना करते हैं। Stories such as so many children, they are sitting in front of the dining table for breakfast, nothing available in the house. बहुत सारे उनके जो बच्चे जो थे वहां पर उस डाइनिंग टेबल में ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं टेबल पर, लेकिन वहां पर टेबल पर कोई ब्रेकफास्ट नहीं था। And he asked, as usual, children, you give thanks for the food. और जैसे वो करते उन्होंने बच्चों को कहा कि बच्चों सारे आप प्रभु इस ब्रेकफास्ट के लिए धन्यवाद दो। So children were not aware. They were not told nothing is available in the house. और बच्चों को कुछ भी नहीं पता था कि उस घर के अंदर कुछ भी नहीं उपलब्ध है। So innocent children, they gave thanks to God for the food, for the breakfast, जैसे वो करते उस ब्रेकफास्ट के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया प्रभु का, which was not there. और जो वहां पर था ही नहीं It ब्रेकफास्ट। said that time somebody knocked at the door. और वहां पर कहा गया कि उसी समय पर कोई दरवाजा पर खटखटाता है। A nearby bakery, they while baking it little burned. It was not good for sale. That owner thought it's better to gift this bread to those children. और वहां पर जो बेकरी का जो मालिक होता है वो कुछ ब्रेड थोड़े से जल जाते हैं जो बेच नहीं पाते, उसने सोचा कि वो जाकर यहाँ पर उनको दे देगा। So George Muller experienced many of God's faithfulness because he chose to trust God, not in any man. और यहाँ पर जॉर्ज मुलर ने परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को कई बार अनुभव किया, क्योंकि जॉर्ज मुलर ने परमेश्वर की विश्वासयोग्यता पर भरोसा रखना चुना, न कि मनुष्य की। And he also learned to make known his needs to God, not any people. और उसने जॉर्ज मुलर ने हमेशा इस बात को सीख लिया कि अपनी सारी जरूरतों को केवल परमेश्वर को ही बताएगा, किसी और को नहीं। So instead of talking to some people, he talked to God, and God will talk to that people, make them to provide. और इससे कि वो लोगों से बात करे अपनी जरूरत के बजाय वो परमेश्वर से बात करता था और परमेश्वर लोगों के मन को उभारता था। So that thought was coming to me during the last week. और इस पिछले सप्ताह में ये विचार मेरे मन में आ रहा था। We may desire certain things, some changes should happen in some people. और हम कई बार इच्छा रखते हैं कि कई लोगों के हमारे आसपास लोगों के अंदर कोई बदलाव होना चाहिए। we'll have desire like our relatives should be converted. और हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि हमारे जो रिश्तेदार है वो उनका रूपांतरण होना चाहिए, वे बदल जाने चाहिए। See, if we directly deal with or talk to them, nothing may happen. और कई बार सीधे रूप से जब हम उनके वर्ताव करते हैं तो कुछ नहीं होता है। But if you talk to God about that need, God can work. लेकिन जब उस जरूरत के बारे में परमेश्वर से बात करते हैं तो कुछ परमेश्वर कर सकता है। God can transform lives.
परमेश्वर जीवनों को बदल सकता है। That thought always come to me, I can't change anyone. ये विचार मेरे मन में आता है, मैं किसी व्यक्ति को नहीं बदल सकता, Only God can transform a person. और केवल परमेश्वर ही एक व्यक्ति को बदल सकता है। George Muller, for example, he prayed for the conversion of some of his close relatives. और उदाहरण के रूप में जॉर्ज मुलर जो है, उनके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार को प्रभु का उनका उद्धार हो, इस प्रकार वे प्रार्थना करते थे। That he prayed for many years, maybe decades. और बहुत सालों तक, यहाँ तक बहुत ही साल बीत गए, उन्होंने इसके बारे में प्रार्थना किया। So some of the relatives were converted during his lifetime. और कुछ रिश्तेदार जो है उनके जीवन के दौरान उनका उद्धार हुआ, वे रूपांतरित हुए। But some others didn't. They didn't come to faith during his lifetime. लेकिन जब तक वो जिंदा थी जॉर्ज मुलर, कई रिश्तेदार प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने नहीं जाना। But George Muller continued to pray. He was sure they will come. It's a matter of time. और यहाँ पर वो निरंतर प्रार्थना करना आरंभ रखते थे, क्योंकि वो बहुत ही निश्चय रूप से जानते थे केवल समय की बात है, जरूर ऐसा So होगा। it is said that even while he knew that on his last day on earth, on his deathbed, when he was about that day, he knew that he was going to die. At that he remembered some of my prayers not yet answered. और क्योंकि जब वो उसके मृत्यु के नजदीक था, उसके अंतिम दिन में था, वो याद करता है कि बहुत सी ऐसी प्रार्थना जिसका उत्तर नहीं मिला था। So he remembered, Lord, you know, part of my prayers you answered. There remain some are yet to be answered. ऐसे समय में प्रभु को याद दिलाता है, प्रभु तूने बहुत सारी मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर को दिया है, लेकिन कुछ भाग अभी तक उत्तर नहीं मिला है। He died with the assurance that even after my death, the Lord will answer. इस निश्चय और आश्वासन के साथ वो मृत्यु उसकी होती है कि यहाँ तक मेरी मृत्यु के बाद भी परमेश्वर उस प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा। He did not die complaining to God, I am praying for decades, still you are not answered. That is not how he died. और इस प्रकार वो कुड़कुड़ाते हुए, शिकायत करते हुए वो नहीं मरा कि मेरे जीवन में इन प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिले। See, he died with remembering and with that assurance, reminding God, Lord, you must answer and after my death and you will do that. और एक आश्वासन के साथ परमेश्वर को स्मरण दिलाते हुए कि प्रभु यहाँ तक तूने उस उत्तर को दिया और मेरी मृत्यु के बाद भी प्रभु तू उस प्रार्थनाओं के उत्तर को देगा। And indeed that happened. Some people they were converted after his death. और वास्तव में ऐसा हो कि उसकी मृत्यु के बाद जो लोग प्रभु में नहीं आए थे, उनका रूपांतरण भी वो उसके बाद आते हैं। So what an encouragement it is for us. और कितने बड़े प्रोत्साहन की बात हमारे लिए So है। don't give up. And if we find little delay, don't give up praying. Don't be discouraged. और इसलिए यदि हमारे जीवन के अंदर किसी चीज में देरी होती है तो हम हार न माने। God wants us to pray with confidence. और प्रभु चाहते हैं कि बड़ी हिम्मत हियाव के साथ हम प्रार्थना निरंतर जारी रखें। With a full assurance of faith. If I pray something in God's will, God will answer. और पूरे विश्वास के उस निश्चय के साथ कि जो परमेश्वर की इच्छा के अंदर मैं प्रार्थना करूंगा या करूंगी, परमेश्वर उसका जरूर उत्तर देगा। For reasons which I don't know, there may be some delay. Maybe God may be preparing me. God may be preparing others. और हो सकता है कि बहुत देरी हो रही होगी, हो सकता है उस समय के दौरान परमेश्वर मुझे या अन्य व्यक्ति को तैयार कर रहा होगा। 1 John chapter 5 verse 14. पहला यूहन्ना 5:14। We read, this is the confidence which we have before him, that if we ask anything according to his will, he hears us. और हमें उसके सामने जो साहस होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। So that when we pray, that confidence we should, I am praying, and this is something which recently really encouraging me. Often this comes to me. His ears are attentive to my और prayers. जब कभी हम प्रार्थना करते सुनिश्चित करें कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उसके कान मेरी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। And even if there is a delay, I am okay to wait for God's time. और यहाँ तक देरी हो सकती है, लेकिन प्रभु के समय तक इंतजार करने के लिए मैं तैयार हूँ। But he's interested, he's listening to my prayers with interest because his ears are attentive to my prayers. लेकिन परमेश्वर बड़ी रुचि के साथ मेरी प्रार्थना को सुनता और ध्यान लगाकर मेरी प्रार्थना को जानता है। Even if it takes time, I am sure he will answer. और यहाँ तक समय लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा निश्चय है कि जरूर परमेश्वर उत्तर देगा। So anything which we pray according to God's will, we should have that confidence. कुछ भी जो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते, उसके बारे में हमें एक हियाव होना चाहिए। See, another thing which Jesus spoke about prayer is your prayer should not be like a hypocrites. और दूसरी बार यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना जो है वो पाखंडी के समान नहीं होनी चाहिए। Meaning your prayer should not be our
interest, hidden interest is my prayer others should hear. और ये हमारे जीवन के अंदर कोई उसमें रुचि नहीं होनी चाहिए कि मेरी प्रार्थना अन्य लोग सुने। So that should not happen. Our interest should be as if nobody is here. I am praying to God. I want only God to hear if possible. और हमारी रुचि किसी अन्य लोगों को दिखाने के लिए, सुनाने के लिए नहीं, लेकिन हमारी रुचि केवल परमेश्वर को सुनाने के लिए हमारी प्रार्थना होनी So that चाहिए। actually Matthew chapter 5, that's the first thing Jesus taught about prayer. You don't pray like the hypocrites. और पहली बात मत्ती 5 में यीशु मसीह ने उन लोगों को सिखाया कि तुम पाखंडी के समान प्रार्थना मत करो। It comes to me when people request prayer. No, we are normally eager to, we want to please them. We are eager to tell, okay, I'll pray for you. जब लोग आपके पास आते प्रार्थना की विनती लेके, हम बहुत इच्छा के साथ बोलते कि हाँ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। So this thought comes to you, you are promising them to pray is against not what is, your prayer is not, is more important. और यहाँ पर जो है आप उसको वायदा दे रहे प्रार्थना करने के लिए, आपकी प्रार्थना जो है मुख्य भाग नहीं है। Don't promise anything which is just to please others. और अन्य लोगों को केवल प्रसन्न करने के लिए आप वायदे को न दे। But are you praying in secret? लेकिन क्या गुप्त में उस व्यक्ति उस बात के लिए आप प्रार्थना करते हो? That is important. ये महत्वपूर्ण है। Even you are not telling them I am praying for you. और यहाँ तक कि आप लोगों को शायद न बताएंगे कि मैं आपके लिए प्रार्थना No, करता we can हूँ, definitely tell them to encourage, nothing wrong in it. और आप जरूर उनको प्रोत्साहन देने के लिए कह सकते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं But है। our prayer before God is very important. लेकिन हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। No, we read in 1 Samuel पहला शमूएल about Hannah's prayer. हन्ना की प्रार्थना के बारे में। Now that's an example how one can pray without others noticing. ये एक उदाहरण है जहां पर हम इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं जहां लोगों को न बताए बिना या उनकी जानकारी के बिना हम प्रार्थना कर सकते You हैं। know, Hannah was a woman with a lot of distress inside. और हन्ना जो है बहुत ही हताश एक ऐसी स्त्री थी। She was so much humiliated and trampled upon by another woman. और अन्य लोगों द्वारा उसका बहुत बार अपमान किया गया था, जैसे कि अन्य स्त्रियों के द्वारा, लोगों के द्वारा जैसे उसको कुचला गया था। The other woman of his second wife of his husband, her husband was provoking her day after day और उसके पति की जो दूसरी पत्नी थी प्रतिदिन उसको चिढ़ाती थी, and irritating her. उसको निरंतर परेशान करती थी। So it is mentioned about it. Maybe our own experience different ways. और हमारे जीवन में भी अलग अलग हम परिस्थितियों में हम अनुभव करते होंगे। Hannah's heart condition that is recorded here, 1 Samuel chapter 1 verse 10. और पहला शमूएल पहला अध्याय 10 वचन के अंदर हन्ना के हृदय की अवस्था यहाँ पर लिखी गई है। It's mentioned she was greatly distressed. और वहां लिखा है कि बहुत ही व्याकुल होकर वो प्रार्थना कर रही And थी। with that heart condition, he prayed to the Lord and wept bitterly. और मन में व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करके बिलक बिलक कर रोने लगी। And the way when you read that passage, we can understand she was in verse 12. It is written that it came out that as she continued praying before the Lord, Eli the priest were watching her. और 12 वचन में जब परमेश्वर के सामने ऐसी प्रार्थना वह कर ही रही थी हन्ना, तब एली याजक उसके मुंह की ओर ताक रहा था। And verse 13 we read Hannah, she was speaking in her heart, only her lips were moving and her voice was not heard. 13 वचन में हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते पर उसका शब्द न सुन पड़ता था। So Hannah was not even remembering that this priest is observing her prayer. और हन्ना को ये पता भी नहीं था कि याजक उसको देख रहा था। And she did not want anyone to go. She was just pouring out her heart. और वो चाह भी नहीं रही थी, केवल अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल रही थी। Out of her distress and burden in her heart, she was just wanted to pour out of the heart. और अपने हृदय की व्याकुलता और अपने बोझ में से परमेश्वर के सामने चीजों को उंडेल रही थी। Just lips were moving, no voice. Only God is hearing the heart cry. और उसके होठ तो हिल रहे थे लेकिन कोई शब्द नहीं थे, पर परमेश्वर उसके मन की हृदय की पुकार को सुन रहा था। And priest, he misunderstood her. और यहाँ पर याजक जो है उसको गलतफहमी हो जाती So है। we can learn something. Even so-called priest can misunderstand us. इस बात पर हम गौर कर सकते हैं कि यहाँ तक याजक भी हमें गलत समझ सकता है, Sometimes elders can misunderstand और you. हो सकता है कि एल्डर जो वो आपको गलत समझ सकते हैं। But don't be disheartened. लेकिन आप निराश न हो। Elders are human beings. और एल्डर्स जो है वो व्यक्ति वो मानव है। How does it matter? Let it is misunderstood. What matters is God understands it. इससे फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य मुझको गलत समझे, लेकिन परमेश्वर क्या समझता है। And
that Eli is using some harsh words to her. Already she is so much oppressed and painful, but he is on the more adding pain to her. और एली यहाँ पर जो है बहुत ही याजक बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है। पहले ही भी बहुत ही कठिनाइयों से हताशा से गुजर रही थी और एली उसको कहता He है blames you, are you drunk? Put away your wine from you, like that. और वो कहता है एली कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार दे। But she did not fight against that priest. She's saying, verse 15, no, Lord, I am a woman oppressed in spirit. I am not drunk. I am not a bad woman. और वहां पर वो बदले में झगड़ा नहीं करते, लेकिन 15 वचन में कहती हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखी हूं, मैंने न तो दाखमधु पिया है न मदिरा, मेरे अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर से कही है। I just poured out my soul before the Lord. मैंने अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर के सामने उंडेल दी It's a है। good example of a genuine prayer. और ये एक वास्तविक सच्ची प्रार्थना का बहुत ही उत्तम उदाहरण ये है। Not in words, of pouring out our soul before the और Lord. अपने शब्दों से बढ़कर हमारा प्राण, हमारे हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल देना। And he's again saying, please don't misunderstand me. I am not a worthless woman. I just spoken out of my concern. In और वो my आगे heart. कहती है कि अपनी दासी को तुच्छ मत जान, क्योंकि जो कुछ मैंने अब तक कहा बहुत ही शोकित होने, चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। And the best thing is, there is something written. I am always encouraged about this verse 18. और 18 वचन में बहुत ही अद्भुत बात लिखी है, जिससे मैं बड़ा प्रोत्साहन हमेशा होता हूँ। Even though that priest did not understand, Lord heard her prayer. और यहाँ तक याजक ने उसको नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना And she received that comfort from the Lord. और परमेश्वर से सांत्वना को हन्ना ने प्राप्त So किया। that is a benefit. If you are looking to God, not to a man. और यही वो फायदा है जब आप परमेश्वर की ओर देखते, न कि मनुष्य की ओर। So it's mentioned that the woman went away and ate, and her face was no longer sad. और वहां लिखा है 18 वचन में दूसरे भाग में, तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास न रहा। This is what happens invariably this way. If you really pour out our hearts before God, even people misunderstand, our face will no longer be sad. और ये हो सकता है कि हम जब अपने मन को परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं, पर लोग हमको गलत समझ सकते हैं, लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं, हमारा मन कभी भी उदास, हमारा चेहरा कभी उदास नहीं So होगा। God intends to give that comfort and consolation and assurance in our heart. परमेश्वर का यही इरादा और इच्छा है कि वो सांत्वना, वो निश्चय हमारे हृदय के भीतर वो दे। When you are genuinely burdened inside and we are pouring out our heart before God, not before people. और जब हम पूरी वास्तविक सच्चाई के साथ हमारे मन और बोझों को परमेश्वर के सामने उंडेलते, न कि मनुष्य के सामने। Our prayer is not just a hypocritical prayer. We are interested that others should know us as a brother or sister who spend much time in prayer. और हमारी प्रार्थना एक पाखंडी भाई और बहन के समान नहीं होती, जिसमें हम चाहते कि अन्य भाई बहन जाने कि हम एक बहुत ही प्रार्थना करने वाले भाई और बहन हैं। Let it not be. Let our desire be my prayer. Let only God hear it. और हमारी ऐसी इच्छा न हो, पर हमारी इच्छा हो कि हमारी प्रार्थना केवल परमेश्वर ही सुने। We in that beautiful song, in one song, what a friend we have in Jesus. और उस गीत को जैसे हम गाते कि कैसा यीशु हमारा मित्र है, दोस्त है। There are some verses. One of the verses says that what peace we often forfeit, what needless pain we bear. और उसमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार है कि कितनी शांति को अक्सर हम खो बैठते हैं और कितने हम उस व्यर्थ, उस दर्दों को, उन बोझों को उठाए फिरते हैं। All because we do not carry everything to God in prayer. और ये सारी बातें इसलिए होती है कि इन सारी बातों को हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में नहीं ले जाते हैं। And another verse is say, have we trials and temptation? Is there trouble anywhere? और क्या आपके जीवन में कोई परीक्षा है, कोई समस्या है, कि क्या कोई भी तकलीफ है आपके जीवन में है? We should never be discouraged. कभी Take भी it to आपको the Lord निराश in नहीं prayer. होना है। आपको सारी बातें परमेश्वर के पास प्रार्थना में लेकर जाना So it's है। a tremendous encouragement when we learn to trust God. ये बहुत ही अद्भुत प्रोत्साहन देने वाला है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख जाते हैं। In the middle of all that struggles and difficulties God allows in our lives. और जो सारे संघर्ष और कठिनाई परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देता है, उसके दौरान जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, We can receive that comfort just like Hannah received. और जिस प्रकार हन्ना ने उस सांत्वना को प्राप्त किया, वैसे हम भी उस सांत्वना प्रोत्साहन को प्राप्त करेंगे। Philippians chapter 4, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय verses 6 and 7. 6 और 7। We read there, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made to God. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन
प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। So a strong encouragement, exhortation is be anxious for nothing. और बहुत ही शक्ति और बहुत ही मजबूताई के साथ ये हमें प्रोत्साहन यहाँ पर मिलता है, किसी बात की चिंता मत So करो। can we receive that exhortation in our heart today as if God is speaking to us personally? और क्या व्यक्तिगत रूप से जब परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, इस उपदेश को, इस बात को, इस वचन को क्या हम ले सकते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत कर, Be anxious for absolutely nothing. और पूरी तरह से किसी भी बात की चिंता मत करो। This is the exhortation God wants to talk to each one of और us. इसी अपेक्षा के साथ परमेश्वर हम सभी से बात करना चाहता There है, is no need to be anxious about anything. और किसी भी बात में चिंता करने की आवश्यकता जरूरत नहीं And है, there is also no need, there is no benefit in being anxious. और चिंता करने में कोई फायदा है ही नहीं। God wants us to see that lives are free from anxiety and worry. और प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन जो है पूरी तरह से इन चिंता से, इन बोझों से पूरी तरह से मुक्त, आजाद हो। But yes, one thing we should do with the prayer and supplication along with the thanksgiving, we can let our need known to God. एक चीज हम कर सकते हैं, हर बात में, हर एक निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर को हम बता सकते हैं। And what the result is, peace of God which surpasses all understanding will guard our hearts and minds in Jesus Christ. उसका परिणाम क्या होगा? तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। So we can be devoted in prayer और हम अपने आप को प्रार्थना में समर्पित कर सकते हैं, with an attitude of thanksgiving. और एक धन्यवाद के स्वभाव के साथ। God likes that. और प्रभु इसको पसंद करता है। Even though He knows us, when we pray, it expresses our dependence on Him, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं, and He will be eager to come with the answer. और प्रभु वहां पर बड़ी इच्छा के साथ हमारे उत्तर के साथ आएगा। Now in Matthew chapter 5, मत्ती 5, when Jesus taught about prayer, जहां यीशु मसीह ने प्रार्थना के संबंध में सिखाया, there is a couple of things which I want to share with you. और कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। उसमें से Matthew chapter 6, that is one verse is verse 12. वचन 12, मत्ती 6 वचन 12। Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। So meaning when we are asking for forgiveness, इसका मतलब जब हम माफी के बारे में हम क्षमा को मांगते हैं, the Lord want to remind us, प्रभु हमको याद दिलाना चाहता है, is there someone you find it difficult to forgive? ऐसा कोई है जिनको आप क्षमा करने में आपको तकलीफ या आपको कठिनाई हो रही है? Some brother, sister who made a loose remark, something wrong they did और or हो spoke, सकता है आपके विरोध में किसी भाई और बहन ने कोई बुरी बात कही हो या करी हो, and you are holding on to her or his neck, unwilling to forgive. और आप उस भाई और बहन की गर्दन को पकड़े हुए हैं, आपकी इच्छा नहीं है कि उस भाई और बहन को आप क्षमा करें। It's very important. Before we pray to God forgiving, first check, have I forgiven others? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम अपने आप को जांचें कि क्या मैंने सबको क्षमा किया है या नहीं। No, on this particular point, at the end of that prayer, Jesus reminded once again, taking that part out. और यहाँ पर उस वचन के अंतिम भाग के अंदर कुछ बात यीशु मसीह जोर देते हुए कुछ कहता है। Matthew 6:14 and 15. 14 और 15 वचन में, If you forgive others their trespass, transgression, your heavenly Father will also forgive you. इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। So have you noticed, for forgiveness also there is a condition. और आपने देखा यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर क्षमा प्राप्त करने के लिए भी एक शर्त है। In such clarity is written, God's forgiveness on us depending on your willingness to forgive others who have offended you. और कितनी साफ रीति से यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जो हमारी क्षमा माफ करता है वो एक शर्त पर आधारित है कि जिस पर हम अन्य लोगों के पापों को, अपराधों को क्षमा करने की इच्छा को रखते It हैं। cannot be any more clearer. इससे और साफ क्या हो सकता था? Jesus reaffirmed, if you do not forgive others, then your Father will not forgive your और transgression. 15 वचन में कहता है, यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा न करेगा। And in Matthew, James also, this is again, once again, when you pray for the sick, that matter is written. Confess your sins to one another. और याकूब के अंदर भी हम इसी बात को देखते हैं कि जहां पर हम चंगाई के लिए प्रार्थना करने से पहले हम अपने पापों को, अपराधों को एक दूसरे के साथ
सामने हम अंगीकार करें। You don't need to confess all sins to one another, और आपके सारे पापों को, अपराधों को एक दूसरे के सामने आपको साझा नहीं करना है, but we need to confess one another what is applicable to each other, that particular person. लेकिन एक दूसरे के सामने उन बातों को मान लेना है जो एक दूसरे से संबंधित है या एक दूसरे के ऊपर लागू होती है। Jesus again told, and when you come to offer something and you remember somebody has something against you, और यीशु मसीह ने और एक जगह पर कहा है कि जब तुम अपने बलिदानों को उस मंदिर में लेकर आते हो और जब आपको याद आता है किसी अन्य व्यक्ति को तुम्हारे विरोध में कोई बात है, and you leave that there, you go and first reconcile with that person. उस बलिदान को वहीं पर छोड़ के सबसे पहले जाकर उस व्यक्ति के साथ आप मेल मिलाप कर So लो। we can understand how Jesus gave emphasis on reconciling with others. आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इन बातों के द्वारा यीशु मसीह मेल मिलाप के ऊपर जोर देता है। We can check, is there any hindrance? Is that a hindrance for God answering, or we are unwilling to reconcile with others? और जब हम एक दूसरे के ऊपर साथ मेल मिलाप करने के लिए तैयार नहीं होते, क्या ये हमारे जीवन के एक रूप में एक अवरोध रूप बन रहा है? We know there is something and we are pretending as nothing happened. हम जानते कि कुछ तो है जो बाधा रूप है, लेकिन हम एक दिखावा कर रहे हैं सब कुछ ठीक है। But we know that person and God also knows. और हम जानते कि वो व्यक्ति जानता है और परमेश्वर भी इस बात को जानता So है। better be honest before go and reconcile first. ये अच्छी बात होगी, हम ईमानदारी से पहले उस व्यक्ति के सामने हम मेल मिलाप कर ले। So before praying, coming to pray, forgiving others, reconciling others with others, very important. और प्रार्थना करने से पहले अन्य लोगों को अपराध क्षमा करना, उनके साथ मेल मिलाप करना बहुत ही अधिक ये बात महत्वपूर्ण है। Otherwise, many prayers can be just superficial. God cannot answer. Listen to our नहीं तो prayers. बहुत सारी चीजें, प्रार्थनाएं जो है वो बनावटी दिखावटी हो जाएगी और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। So may God give us that grace to make that effort to keep our conscience clear before God and before others. और प्रभु हमें ये अनुग्रह दे कि हम हमारा विवेक परमेश्वर के सामने और अन्य लोगों के सामने शुद्ध बनाए रखें। About forgiveness where it is required and also where reconciliation that is और required. जहां कहीं हमें अपराध को क्षमा करना है, जहां कहीं हमें मेल मिलाप करना, उन सारी बातों के अंदर। Don't pretend nothing is there. और वहां पर आप दिखावा न करें कि कुछ नहीं हुआ है। Another in Matthew 6:13. और मत्ती 6:13 के अंदर हम देखते हैं, This is very important. So coming to me very powerfully. Jesus taught, pray like they do not lead us into temptation, but deliver us from the evil. और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। So it's mentioned about temptation. यहाँ पर परीक्षण के संबंध में लिखा गया है। Many of us are tempted in different ways. हम में से कई सारे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर परीक्षण या प्रलोभित होते हैं। So I think many struggles we may have in personal lives. हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर बहुत सारे संघर्ष हो सकते हैं। So this was coming to me. One solution to overcome temptation to pray, Lord, I am struggling, I need your help. और एक समाधान उस परीक्षण में से बाहर निकलने का यह है कि प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं यहाँ पर संघर्ष कर रहा हूँ, प्रभु मेरी सहायता कर। I believe if you really know personal struggle, whatever may be the temptation, if you place it before the Lord, is too much for me, please help me, the Lord will definitely help us and deliver us from that temptation. और आपकी परीक्षा या आपका जीवन के अंदर वो तकलीफ या आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई भी प्रलोभन क्यों ना हो, जब आप सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर के सामने आप रख देंगे तो परमेश्वर जरूर आपकी सहायता करेगा। Whether it's some addictive habits, personal habits, और हो सकता है व्यक्तिगत बहुत ही एक व्यसनी एक आदतें ऐसी हो सकती we है, want to get rid of it, उससे हमको छुटकारा पाना है, but we are struggling there. लेकिन हम वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। Place it before God. प्रभु के सामने उसको रख दे God will definitely deliver और us. सच में परमेश्वर उससे हमको छुड़ाएगा। Because Jesus taught, pray about in the situation of temptation. He will deliver us. क्योंकि यीशु मसीह ने हमको सिखाया है कि उस परीक्षण के समय में हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस परीक्षण से मुझको तू छुड़ा। I remember many years before when I had difficulty in forgiving some people. मुझे याद आता है कई सालों पहले मुझे कुछ लोगों को क्षमा करने में बहुत ही कठिनाई हो रही I थी। understood in my mind I need to forgive, then only God will forgive me. मैंने इसको मेरे मन में समझ लिया था कि मुझे अन्य लोगों को क्षमा करना है, तभी परमेश्वर मेरे अपराधों को मुझे क्षमा करेगा। I found it very hard. लेकिन मेरे लिए बहुत ही ये कठिन था। Then inside I really cried, I am not able to do it. Please help me. मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं ये अपने आप से नहीं कर रहा, प्रभु मेरी कृपया सहायता कर। And God helped. और प्रभु ने मेरी मदद की। And that person, even now I can smile all the bad thing he did to me, I can smile at him, but I can see I can hug at him with him, but because I know I have forgiven him. और क्योंकि अब मैं उस बात को कर पाया, अब उस व्यक्ति को देख के जो भी उसने बुरी बातें मेरे विरोध में की, उसको मैं मुस्कुरा सकता हूँ, उसको मैं गले से लगा सकता हूँ। God
gave that ability. प्रभु ने मुझे वो So योग्यता I दी। want to encourage you in areas where you're struggling, temptation, difficulties, forgiving, some struggles in thought life. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, हमारे जीवन में कहीं पर भी ऐसे प्रलोभन है, परीक्षाएं है, जहाँ पर हम क्षमा नहीं कर पा रहे, मेल मिलाप नहीं कर पा रहे, हमारे विचारों के अंदर हम संघर्ष कर रहे हैं, Pray to the Lord. हम प्रभु Lord, से आइए help me. प्रार्थना करें। God will help us. प्रभु हमारी सहायता If you करेगा। are tempted to be discouraged, और जब हम बहुत ही हताश होने के लिए निराशा के अंदर गिरते हैं ऐसे परीक्षण में, pray to the Lord. He will deliver us from those और temptations. प्रभु से ऐसे समय में प्रार्थना करें, प्रभु वहां से उस परीक्षण से हमको छुड़ाएगा। So may God really help us, dear brothers and sisters. और प्रभु हमारी भाई और बहनें हमारी सहायता करें। We are praying to a loving Heavenly Father who are listening. You are eager to listen to our prayers. और हम ऐसे स्वर्गीय प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं जो हमारी प्रार्थना सुनने के लिए उत्सुक है और उसको उत्तर देने में। So let us continue to pray with a consistency. और हम निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को जारी रखें, Don't pray for some time and give up. और कुछ समय तक प्रार्थना करने के बाद उसको आप बंद न कर दे। Any prayer, there are certain prayers we know. I am praying this according to God's will. और हम जब जानते हैं कि कुछ प्रार्थनाओं को हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, We should pray till answer comes. और जब तक उसका उत्तर नहीं मिल जाता, आइए हम निरंतर प्रार्थना करना उसके लिए जारी रखें। Some prayers God will quickly answer, like when Solomon prayed over wisdom, instantly his answer was given. कुछ प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर बहुत ही त्वरित तुरंत ही जल्दी कर देगा। जैसे सुलेमान ने बुद्धि के लिए प्रार्थना की, उसको तुरंत परमेश्वर ने बुद्धि दे दिया। But when Abraham prayed for a son, he had to wait long years, decades he had to wait. और लेकिन अब्राहम ने जब संतान के लिए प्रार्थना करा तो बहुत सालों तक उसको इंतजार करना पड़ा। But he waited and finally God gave. God's own time he gave him a son. उसने इंतजार किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने समय पर उसको संतान दिया। So we read about what an encouragement. Even the years passed, he was getting old, his wife was getting, but he did not give up. He knew that God will answer. His faith grew strong and he was confident God will answer. और कितना बड़ा प्रोत्साहन जो है, उस समय बीतता गया, वो वर्ष बीतते गए, लेकिन वो निराश नहीं हुआ, उसका विश्वास बढ़ता गया। वो या उसके अंदर था कि परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देगा। But when Paul prayed for healing, the Lord answered in a different way. लेकिन पौलुस जब प्रार्थना उसको उस चंगाई के बारे में प्रार्थना करता है तो परमेश्वर एक अलग रूप से उसको उत्तर देता The है। Lord said, I will not heal you, but I'll give you grace. My grace is sufficient for you. प्रभु उसको कहता है, मैं तुझे चंगाई नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझको अनुग्रह दूंगा और मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। With my grace, you will be able to endure through this. और मेरे अनुग्रह के द्वारा इन सारी बातों से सुख गुजर पाएगा। So sometimes God's answer is like that. Instead of taking us literally, He was give us grace to endure through that situation with a purpose. और कई बार परमेश्वर के उत्तर इस प्रकार होते, उस बात से, उस परिस्थिति से छुड़ाने की बजाय हमको अनुग्रह देता है उसमें से गुजरने के लिए। So I was especially encouraged. Pray instead of talking to people, talk to Jesus. इस बात से मैं प्रोत्साहित हुआ, मनुष्य से बात करने से बजाय आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। Whether it's a conversion of some people, change I desire in others people, और हो सकता है कि अन्य लोगों के बदलाव के बारे में आप बात कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे। take it to the Lord in prayer. आइए प्रभु के पास उसको प्रार्थना में लेकर जाए, He will answer definitely. और जरूर वास्तव में उस प्रार्थना का उत्तर वो देगा। Amen. आमीन।